Welcome to my dear online students. This is another session for class 7th and 10th science, and this chapter is acids, bases and salts. You know that we have started it from the last week, and in the previous session we have discussed what is element, how elements exist in the nature. You know that elements exist. Elements exist both in free form as well as in combined form. Since you came to know, as there are near about 118 elements, and 108 among these 118 elements, some exist in free form and some exist in combined form. Either they combine with their own atoms, or they combine with the different atoms of the elements. For example, suppose, what does it mean? Either they combine with the atoms of their own, with their own atoms. For example, if you take the example of element hydrogen, it exists in the form of H2. That means here two hydrogen atoms combine together to form H2. But sometimes these atoms can combine with different atoms of the elements. For example, water, where atoms of hydrogen element and atoms of oxygen element combine together. That means some elements may exist in combined form, some may exist in free form, and in the free form, you know that noble gas exists in free form. Noble gases, their one atom can exist in nature, but rest of the elements, their one element cannot exist singly in nature. Now, after that, I discussed the characteristic properties of the elements in the previous lecture, and there I have classified these elements into four categories. One is shabash metals, metalloids, non-metals, and noble gases. Noble gases are also non-metals, but they have been classified separately. Noble gases, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पीरियोडिक टेबल है, जो उसका ग्रुप 18 है, वो सारा बिलोंग करता है किससे? नोबल गैसेस से, और उसमें नॉन मेटल्स भी है. जो भी मेटालाइज के राइट साइड में एलिमेंट्स है वो सभी क्या है? नॉन मेटालाइड्स कौन कौन है? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, टेल्यूरियम है, एंड पोलोनियम है. They are the metalloids. They are diagonally present in the periodic table. If you see the periodic table, the elements present on the right side of these elements, they are called non-metals, and they also include noble gases. And the elements present on the left side, they are called metals. Suppose lithium, sodium, potassium, iron, cobalt, ये सब इसमें आते हैं metals में. तो ये हमने पिछले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था. ये आपको ज़रूरी याद रखना कि मेटालॉइड्स किन को कहा जाता है. सॉरी, मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा, कार्बन नहीं है, बोरान है. बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़रूरी आपको ये याद रखने. कभी कभार आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर मेटालॉइड्स. Metalloids are those elements which are showing the properties of both metals and non-metals, and they are present in the middle of the periodic table diagonally, and the elements which are present on the right side are called non-metals. Noble gases are also present on the right side, and the elements which are present on the left side are called metals.
तो आपको ये याद रखना है। अब हमें, क्योंकि हमारा टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को समझने के लिए बेसिक थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें आखिर एसिड कैसे समझ आएगा, बेस कैसे समझ आएगा। इसके बाद जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकली जब हमने प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने फिजिकली क्लासिफाई किया था मैटर को, तो वहाँ पर मैंने बताया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकली जब हमने क्लासिफाई किया था मैटर को, केमिकल क्लासिफिकेशन जब हमने किया था, तो मैंने आपको बताया था मैटर दो किस्म का होता है, शाबाश, प्योर सबस्टेंसेस एंड मिक्सचर्स। और प्योर सबस्टेंसेस मैंने आपको दो किस्म के बताए थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और इसमें मैंने बात की थी आपकी मॉलिक्यूल की भी, मैंने बताया, मैं आपको सारा बताऊंगा व्हाट इज मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट तो मैंने डिफाइन किया, एलिमेंट एक ऐसा प्योर सबस्टेंस होता है जो खाली एक ही किस्म के एटम्स का बना होता है। एलिमेंट इज दैट प्योर सबस्टेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम एलिमेंट को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो अब टेक्निक्स आ गई है, अब हम एलिमेंट को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उनके एटम्स में, और आजकल टेक्निक है एटम्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब सवाल है व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? ये भी एक प्योर सबस्टेंस होता है, इट इज ऑल्सो ए प्योर सबस्टेंस, ये भी एक प्योर सबस्टेंस होता है। तो ये कैसे बनता है? ये प्योर सबस्टेंस अगर है तो इसमें क्या होता है? कंपाउंड और एलिमेंट में फिर क्या फर्क है? इट इज ए प्योर सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ, जो बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ टू आर मोर देन टू डिफरेंट elements combined together in fixed ratio by weight। उनका जो रेशो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, और जो वेट का रेशो वो भी क्या होना चाहिए? एक तो नंबर का रेशो भी फिक्स होना चाहिए और वेट का रेशो भी फिक्स होना है, मास जिसको हम बोलते हैं, मास और वेट में फ़र्क है। तो आपको पहले यहाँ पे समझना है प्योर सबस्टेंस, जो मैंने बताया कंपाउंड एक प्योर सबस्टेंस होता है जो बना होता है किनका? दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स का बना होता है। मगर ये जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, ये कंबाइन होते हैं आपस में इन ए फिक्स्ड रेशो, एक मखसूस रेशो में, और वो रेशो किसी भी कंपाउंड के लिए फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं मिलाऊंगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? वाटर। तो ये वाटर क्या है? ये कंपाउंड है। क्यों है कंपाउंड? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स और ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स क्या कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर। इसमें अगर आप देखोगे, जो ये एटम्स आपस में कंबाइन हो गए, इनका रेशो, आप दुनिया का कोई भी वाटर ले लो, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे इंडिया का ले लो, चाहे रशिया चाइना का ले लो, हर कोई वाटर, उसमें आप देखोगे, क्या देखोगे? दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, ये आप देखोगे वहाँ पे। तो दैट मीन्स जो रेशो है नंबर ऑफ एटम्स का, वो क्या है? 2:1। मगर अगर हमें अब क्या देखना होगा? वेट का रेशो, क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम का वजन कितना होता है? 1, तो 2 का कितना होगा? 2। और जो ऑक्सीजन के एक एटम का वजन होता है वो होता है 16। तो जब हम इनका सिंपल रेशो देखेंगे, 2 1 2, 2 8 16, दैट मीन्स जो वेट रेशो होता है किसी भी वाटर मॉलिक्यूल में, वेट का रेशो कितना होता है? 1:8। और जो नंबर ऑफ एटम्स का रेशो होता है वो कितना होता है? 2:1। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। और जो वेट का रेशो होता है वो कितना होता है? 1:8। आप दुनिया में कहीं पे भी जाओ,
वाटर में आप देखोगे 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, और जो उनका वेट का रेशो आप देखोगे वहाँ पे वो 1:8 आपको मिलेगा वहाँ पे। ये आपको याद रखना है। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ शाबाश कंपाउंड, एंड यू नो दैट नाउ दिस कंपाउंड इज प्योर सबस्टेंस, जो बना होता है किनका, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करते तो एलिमेंट को मैंने बताया उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, मगर जो कंपाउंड है इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं और वहाँ से हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हासिल कर सकते। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब हो गया, सब अगर आपको वाटर है आपके पास, आप इसको केमिकली या इलेक्ट्रिकली या हीट की वजह से, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट की वजह से ब्रेक कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट मीन जिसका ये बना होगा, ये 2 हाइड्रोजन आटम और 1 ऑक्सीजन का बना होगा, तो इसको हम इन हाइड्रोजन और यहाँ से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर सकते हैं, इट कैन बी फर्दर ब्रेक। तो इसके बाद क्या हुआ, जो ये कंपाउंड्स देखे गए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्योर सबस्टेंसेस। दुनिया में ऐसे ही बहुत सारे सबस्टेंसेस हैं, लाखों में सबस्टेंसेस पाए गए, लाखों में प्योर सबस्टेंसेस पाए गए, दैट मीन कंपाउंड्स को पाया गया है। इन जो 118 एलिमेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाए। तो फिर उन कंपाउंड्स को पहले ओरिजिन या सोर्स के आधार पर क्लासिफाई किया गया। इन कंपाउंड्स को, अब जो आपने ये समझ लिया कंपाउंड क्या होता है, इसी तरह अगर मैं आपको दूसरे एग्जांपल भी दूंगा, सपोज अगर मैं लूँगा यहाँ पे एक कंपाउंड और एक कंपाउंड, सपोज कार्बन को मैं मिलाऊंगा ऑक्सीजन के साथ, अगर मैं कार्बन को मैं बर्न करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है या